Good morning, student. Today we are going to attend economic class. We are going to start the new chapter, chapter number 9, part A, that is from the book Macroeconomic. The name of the chapter is Problem of Deficient Demand and Excess of Demand. A recap of the last video, we have done chapter number 8. The name of the chapter is Short Run Equilibrium. In that chapter, you have studied the concept of short run equilibrium given by the Keynes, and you have done the two approaches, that is ADAS and SNI approach, and then you have done concept of investment multiplier, then relation of multiplier with the MPC जो क्या था पॉजिटिव था, relationship of multiplier with MPS जो क्या था नेगेटिव. Then you have done the working of multiplier and some numerical. Topic covered in this video of chapter number 9. Then you are going to have the knowledge, that is first full employment equilibrium, second underemployment equilibrium, over full employment equilibrium, voluntary unemployment, involuntary unemployment, full employment, frictional unemployment, structural unemployment, deficit of demand, and causes, impact and deflationary gap. Next topic is excess of demand, causes, impact and inflationary gap. Students, these all topics are very important from the board point of view. This chapter is very important from the board point of view. So students, we are going to start our first topic, that is full employment equilibrium. What do you mean by full employment equilibrium? I am going to start my first topic, that is full employment equilibrium. It is a situation when AD is equal to AS at full employment level. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होती है इकॉनमी में. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इन दिस ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड द एम्प्लॉयमेंट. जो काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन नाउ. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS क्या होती है, AD किसके बराबर होती है, AS के बराबर. AD किसके बराबर होती है, AS के. और इकॉनमी में क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मीन जो काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है. अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. नाउ लुक एट हियर दैट y is your income, that is equal to the AS. Now AD, now this is your AD. AD is C plus I. So at this point the economy is in the equilibrium. Why the economy is in equilibrium? Because AD is equal to AS. Now next our topic is underemployment equilibrium. अंडर इक्विलिब्रियम क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे AD तो AS के बराबर रहती है, बट कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो फुली एम्प्लॉयड नहीं होते. क्या होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो फुली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं. मतलब सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, डिमांड क्या है, कम है इकॉनमी में. मतलब AD इज इक्वल टू AS तो रहेगी, बट रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं रहेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. This is Y, that is AS. This first point, that is AD of full employment, and the second line is AD of actual. Full employment means यहाँ पे इकॉनमी AD AS के बराबर है, बट जब इकॉनमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाती है तो हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं. जो एक्चुअल AD कितनी है तुम्हारी, ये है. फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, बट एक्चुअल तुम्हारी डिमांड कितनी है, इतनी है. इस करके और कितनी आउटपुट पे है, ये क्या हुआ, आउटपुट तुम्हारा इक्विलिब्रियम है. और जब डिमांड कम होगी तो तुम्हारे आउटपुट भी क्या हो जाएंगे, अनसोल्ड रह जाएंगे मार्केट में. इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई क्या हो रही है, यहाँ पे लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे AD किसके बराबर होती है, AS के. और यहाँ पर व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, मतलब इकॉनमी में जो रिसोर्सेज हैं फुली एम्प्लॉयड नहीं है. वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. Y is income and the first line is AD full employment, where AD is equal to AS.
इकॉनमी में क्या हुआ कि रिसोर्सेज क्या हो गए, नॉट फुली यूटिलाइज होने के करके हम नीचे को शिफ्ट हो गए, तो दैट इज एडी एक्चुअल। एडी क्या है तुम्हारी, एक्चुअल इतनी एडी है, और एट दिस पॉइंट ये तुम्हारा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज जो है तुम्हारे फुली एम्प्लॉयड नहीं है, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है। Now our next topic is over full employment equilibrium. Over full employment equilibrium क्या होती है? It is a situation when AD is equal to the AS beyond the full employment level. इसका मतलब क्या हुआ, AD AS के बराबर है, फिर भी इकॉनमी में क्या है, कहाँ पे बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। नाउ AD इज इक्वल टू AS, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो इस पॉइंट में है। AD जो है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट जी। आपने स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, जब ओवर आता है आपने ऊपर जाना है, और अगर अंडर आता हो आपने क्या आना है, नीचे आना है। मतलब अगर हम ओवर है, इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज क्या है तुम्हारे पास कम है, डिमांड क्या है ज़्यादा। जब अंडर होती है तब क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके पास ज़्यादा, और डिमांड क्या होती है कम। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ओवर में आपने ऊपर जाना है, ऊपर क्यों जाना है, क्योंकि डिमांड क्या है तुम्हारी ज़्यादा, ठीक है, और रिसोर्सेज क्या है तुम्हारे पास कम है। अगर अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई तो आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाना है ऊपर, बट आना है आपने हमेशा कहाँ है, नीचे, बिकॉज डिमांड क्या है ज़्यादा, पर रिसोर्सेज क्या है तुम्हारे पास, डिमांड क्या है कम, रिसोर्सेज क्या है ज़्यादा। Clear now we have done the three topic, that is full employment equilibrium, under employment equilibrium, next is over full employment equilibrium। आपने एक याद रखनी है, हमेशा इकॉनमी में AD is always equal to the AS। आपने AD AS को इक्वल एज्यूम करके ही आपने अपना क्वेश्चन लिखना है। Now we are going to do the voluntary unemployment. Next topic is voluntary unemployment. Voluntary unemployment का मतलब क्या होता है, it occurs when some people are not willing to work at all or not willing to work at the existing wage rate. वो लोग जो काम करना नहीं चाहते काम करना क्यों नहीं चाहते, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उनको काम मिल रहा है पर फिर भी वो काम करना नहीं चाहते उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जो बंदा काम करना चाहता है पर उसको काम नहीं मिलता। इसमें बंदा काम करना चाहता है, पीपल आर विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिलता। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी इकॉनमी में प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आती है वो हमेशा किसको रेफर करती है, इनवॉलंटरी। जब इनवॉलंटरी मतलब बंदा काम करना चाहता पर उसको काम नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम को रेफर नहीं करती है, कौन सी, प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इंसान को काम मिल रहा है बट वो काम करना नहीं चाहता। दिस इज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। Now next is full employment. What do you mean by full employment? It refers to a situation, एक ऐसी situation है when all those who are able to work, जो काम करना चाहता है, and are willing to work at existing wage rate are getting work. Full employment का मतलब क्या हुआ, जो बंदा काम करना चाहता है और काम का किस पे करेगा, वेज रेट पे, उसको वो वेज रेट भी पसंद है, वो इकॉनमी, तब इकॉनमी क्या होती है, फुल एम्प्लॉयड। तब क्या होती है, फुल एम्प्लॉयड। क्या मतलब, व्हाट यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन देन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं और किस पे काम करेंगे, उसके वेज रेट पे, और उनको काम मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। Our next topic is a situation of full employment does not mean a situation of zero involuntary employment। कहते हैं इकॉनमी जब फुल एम्प्लॉयमेंट होती है इसका मतलब ये नहीं है इकॉनमी में बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। Situation of a full employment does not mean a situation of zero involuntary unemployment।
इसका मतलब क्या हुआ, AD इज इक्वल टू AS है, डिमांड किसके बराबर है, सप्लाई के बराबर है, मतलब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हैं, बट इकॉनमी में कुछ ना कुछ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी। इकॉनमी में जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट किस करके आएगी, ड्यू टू द फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू द फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जब AD इक्वल टू AS है, इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इनवॉलेंट्री, और किसके करके होती है, थ्रू फ्रिक्शनल, और दूसरी कौन सी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो विच इज़ एसोसिएटेड विद द चेंजिंग द जॉब इन द डायनेमिक इकॉनमी। डायनेमिक इकॉनमी मीन चेंजिंग इकॉनमी, बार बार जब लोग जो जॉब को चेंज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किस करके आती है, ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी और चेंज इन द डिमांड। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो एट अ टाइम 100 लेबर का काम करेगी, तो एट अ टाइम 100 लेबर क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। और चेंज इन द डिमांड मीन्स कुछ ऐसी टेक्निक ऐसी डिमांड आ गई जिसमें लेबर की लोड क्या है, कम, तो वो क्या होगी, अनएम्प्लॉयड होगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Now we are going to do our next topic that is very important, that is deficit demand. Deficit demand, this question will come either in a 4 marks or in a 6 marks. Now I am going to start this question, so pay attention. Now this is deficit of demand. डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड की कमी। डिमांड की कमी कब आती है बच्चे, जब सप्लाई क्या होती है ज़्यादा, डिमांड क्या होती है कम। अकॉर्डिंग टू द केन्स, आपको पता है 80 चैप्टर किससे रिलेट करता है, केन्स से। अकॉर्डिंग टू द केन्स इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन AD इज शॉर्ट ऑफ AS कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। इकॉनमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट फिर भी क्या है, सप्लाई क्या है ज़्यादा, डिमांड क्या है कम। कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। अगर आप पेपर में कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी नहीं लिखोगे, आपके यहीं पे एग्जामिनर ने हाफ मार्क्स कट कर देना। इसलिए जब भी डेफिसिट ऑफ डिमांड आएगी, आपने यही लिखना है कि AS इज मोर देन AD या AD इज शॉर्ट देन AS कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। ये कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी आपने लिखना ही लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Now I am going to explain this defined with the help of diagram. First of all, you are going to define it and then you are going to draw the diagram. Now I am going to tell you with the help of diagram. OY is your income or AS, national income or AS, and this a first point, the first line of AD is full employment. Economy क्या है तुम्हारी, full employment है। इकॉनमी में क्या आ रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। और ये कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट E। इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी इकॉनमी में कुछ हम नीचे आ जाएंगे, क्यों, दैट इज ADP, एट पॉइंट ADP मीन्स प्लान और एक्चुअल AD। तुम्हारी एक्चुअल AD कितनी है, तुम्हारी हम अंडर इक्विलिब्रियम चले गए हैं। अंडर इक्विलिब्रियम क्यों चले गए हैं, क्योंकि डिमांड कम हो गई है और सप्लाई और रिसोर्सेज क्या है तुम्हारे पास ज़्यादा, और रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं है। तो इकॉनमी में जो E to F ये सारा जो तुम्हारा रेक्टेंगल है वो क्या शो करेगा, डेफिसिट ऑफ डिमांड। वो क्या शो करेगा, आपका डेफिसिट ऑफ डिमांड। मतलब इकॉनमी में AD इज इक्वल टू AS, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। हम जब भी डेफिसिट ऑफ डिमांड आएंगे, हम हमेशा इक्विलिब्रियम के नीचे आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम के नीचे क्यों आते हैं, अंडर इक्विलिब्रियम क्यों आएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज फुली, क्योंकि डिमांड क्या है तुम्हारी कम, सप्लाई क्या है ज़्यादा। ये E और F जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो सा है, ये सारा का सारा तुम्हें शो कर रहा है कि इकॉनमी में इतना डेफिसिट ऑफ डिमांड है। Causes of deficit of demand. Our next topic is causes of deficit of demand. Our first point is reduction in the private consumption expenditure. You have done that in the 7th chapter, private consumption expenditure, that is a main component of किसका, AD का। कौन सा, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, मेन कंपोनेंट है AD का। जब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में रिडक्शन आ जाती है, कम हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं,
कंज्यूम क्या करते हैं कम, सेव क्या करते हैं ज़्यादा। लोग खर्चा क्या करेंगे कम, सेव क्या करेंगे ज़्यादा। ये डेवलप्ड इकॉनमीज़ में होता है, जहाँ पे एलपीसी क्या करती है राइज करती है। कब राइज करती है, जब कंजप्शन अपने पीक पे पहुँच जाती है। जितना तुमने गुड लेना है तब तुम ले चुके हो, उसके बाद बचा हुआ पैसा तुम लोग क्या करोगे, सेव करोगे। रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे, पहले लिखोगे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ एडी दैट यू हैव डन इन द चैप्टर नंबर 7। जब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में रिडक्शन आ जाती है तब लोग क्या करते हैं, कंज्यूम क्या करते हैं कम, सेव क्या करते हैं ज़्यादा। या डेवलप्ड इकॉनमीज लाइक अमेरिका, ऐसी कंट्री में जब कंजप्शन मैक्सिमम यहाँ पे हो जाती है तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेन कंपोनेंट है, ये आपको पता भी है। अब जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में रिडक्शन आएगी तब पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन आएगी। पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन मीन्स प्रोड्यूसर को पता है उसका मार्केट में सामान बिकेगा नहीं, वो अपने आप प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम। जब कंजप्शन कम होगी जब रिडक्शन होगी कंजप्शन में तब लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। जब रिडक्शन किस में होगी, कंजप्शन में, लोग क्या करेंगे, सेव। जब सेव करेंगे तो खर्चा नहीं होगा इकॉनमी में, तो प्रोड्यूसर का सामान नहीं बिकेगा, तो सामान नहीं बिकेगा तो बिजनेसमैन को क्या होगा, पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट ईयर वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी एडी का एक मेन कंपोनेंट है। द गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कट कर देगी, किसके ऊपर कट कर देगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। या स्टूडेंट यू नो दैट द गवर्नमेंट डू ओनली टू एक्सपेंडिचर, सरकार दो ही खर्चा करेगी, या तो कंजप्शन में और इन्वेस्टमेंट में। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार ना तो कंजप्शन पे करेगी और ना ही इन्वेस्टमेंट पे करेगी। और जहाँ पे उन्होंने पैसा किए अगर वो इस दोनों खर्चे कम कर देगी तो अपने आप इकॉनमी में डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स एडी के मेन कंपोनेंट्स हैं। जब एक्सपोर्ट्स फॉल हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ए फॉल इन एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज, दिस लीड टू अ फॉल इन द डिमांड। बाहरले गुड क्या हैं, सस्ते, इंटरनेशनल गुड्स क्या हैं, सस्ते, और हमारे गुड क्या हैं, महंगे। तो लोग हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, हमारी कंट्री में इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट्स क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहरले गुड्स क्या हैं, सस्ते हैं, और हमारे गुड्स क्या हैं, महंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द टैक्स रेट। सरकार के पास जब पैसा नहीं होगा, सरकार की इनकम कहाँ से आती है, टैक्स से, तो वो टैक्स रेट को बढ़ा देगी। टैक्स रेट बढ़ने से तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो तुम्हें पता है तब तुम्हारे पास कैपेसिटी हो, खर्चने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। जिसका मतलब क्या हुआ, जितनी कम डिस्पोजेबल इनकम उतनी कम डिमांड। डिस्पोजेबल इनकम सबको पता है क्या होती है, क्या डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो तुम्हारे पास पैसा बचा होता है, किसके लिए, या तो आप कंजप्शन करोगे और या क्या करोगे, सेव करोगे। इसका मतलब जितने ज़्यादा टैक्स उतनी कम डिस्पोजेबल इनकम और उतनी कम डिमांड। ये थे आपके कॉजेज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिसिट ऑफ डिमांड। क्या इम्पैक्ट होता है डेफिसिट ऑफ डिमांड से, सप्लाई क्या हो जाती है, एएस क्या हो जाती है ज़्यादा, एडी क्या हो जाती है कम, प्रोड्यूसर का सारा सामान पड़ा रह जाएगा। नेक्स्ट ईयर वो प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। कम करने से इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है ना, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो बंदा काम करना चाहता पर उनको काम नहीं मिलता। और प्रोड्यूसर अपने सामान को क्लियर करने के लिए प्राइस को क्या कर देगा, फॉल कर देगा, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की। स्टूडेंट पे अटेंशन, ये तीनों क्वेश्चन जो है हमने किए, डिफाइन कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज और इम्पैक्ट, ये एक ही क्वेश्चन है। दिस इज ओनली वन क्वेश्चन इन द बोर्ड। एनी पार्ट कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, आइदर कॉजेज, आइदर consequences or a defined. With defined you have to draw the diagram also. Now we are going to do our next topic, that is deflationary gap.
डेफिशिएंट ऑफ डिमांड के से हमेशा इकॉनमी में कौन सा गैप आता है, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। डिफाइन ऑफ डेफिशिएंट एंड डिफ्लेशनरी गैप इज सेम। क्या सेम है, मतलब सप्लाई एएस क्या होगी ज़्यादा, एडी क्या होगी कम, और कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू, इसके करके इकॉनमी में क्या होगा, जब इकॉनमी में डिफ्लेशनरी गैप आएगा तो इकॉनमी में डिफ्लेशनरी का प्रेशर होगा, इकॉनमी में लो डिमांड होगी, लो डिमांड होने से क्या होगा, इकॉनमी में लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट होने करके लो आउटपुट होगी, लो इनकम होगी, प्रोड्यूसर के पास इनकम नहीं होगी, लो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के पास इनकम नहीं होगी, और इकॉनमी में क्या होगी, लो एडी होने के करके इकॉनमी किस में स्लिप कर जाएगी, इन अ डिफ्लेशनरी स्पायरल, इन अ डिफ्लेशनरी स्पायरल। डिफ्लेशनरी डिमांड आने से इकॉनमी में क्या आएगा, लो एडी हो जाएगी, डिमांड कम इन्वेस्टमेंट मीन्स कम इन आउटपुट कम है तो इनकम भी कम है तो एडी, तो इकॉनमी डिफ्लेशनरी स्पायरल्स में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ऑफ डेफिशिएंट और डिफ्लेशनरी गैप इज सेम, और ई और एफ जो डिफरेंस है वो डेफिशिएंट ऑफ डिमांड हमने किया था, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप दोनों क्या होती है, सेम। मतलब जो ई टू एफ पॉइंट है वो तुम्हारा क्या है, डिफ्लेशनरी डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। और ए डी एफ आपको पता है ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ गए हैं, क्योंकि रिसोर्सेज फुली क्या है, इकॉनमी में क्या है, एएस क्या है ज़्यादा एडी के कंपैरेटिव। जब इकॉनमी में यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, एएस इज इक्वल टू एडी, एएस इक्वल टू एडी के साथ इकॉनमी में क्या आ रहा है, सप्लाई एएस क्या है ज़्यादा, एडी क्या है कम, तो हमने नीचे आ जाना है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट पूछेंगे तो आपका ये पॉइंट है। अगर आपसे डेफिनेशनरी गैप पूछेंगे तो आपका कौन सा पॉइंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ, ये जो गैप है वो आपका कौन सा है, डिफ्लेशनरी गैप। Now next topic is excess demand. We have done first deficit of demand, now excess of demand. Excess of demand का मतलब क्या हुआ, डिमांड क्या है ज़्यादा, सप्लाई क्या है कम, एडी क्या है ज़्यादा, एएस क्या है कम, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकॉनमी, इकॉनमी में साथ साथ क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकॉनमी। ये पॉइंट आपने लिखना ही लिखना है। Now I am going to explain with the help of the diagram. Y is national income, that is equal to AS. Now our ADF full employment, इकॉनमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट एफ। जब इकॉनमी में एक्सेस ऑफ डिमांड आएगी हम ऊपर चले जाएंगे एट एडीपी, एडीपी मीन्स प्लान्ड एडी और एक्चुअल एडी, एडी क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ये जो गैप है एफ और ई, ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ डिमांड। कौन सा गैप, ये वाला जो गैप है, ये जो आपका गैप क्या शो कर रहा है, आपका एक्सेस ऑफ डिमांड। वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ क्या शो करेगा, आपका एक्सेस ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है ज़्यादा, रिसोर्सेज क्या है तुम्हारे कम है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द कॉजेज ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड। वहाँ जहाँ जितने भी हमने डेफिशिएंट ऑफ डिमांड में हमने रिडक्शन करी थी, अब इनमें हमने क्या कर देनी, हमने इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब इकॉनमी में एक्सेस ऑफ डिमांड आएगी तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोग क्या करेंगे, कंज्यूम क्या करेंगे ज़्यादा, सेव क्या करेंगे कम। ये कंट्री लाइक इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे कंजप्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, लोग सेव क्या करते हैं कम, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हुई होती। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो प्रोड्यूसर है वो उनको बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशन होगा। बुलिश आपने प्लस वन में किया भी हुआ है। बुलिश का मतलब क्या होता है, व्हेन द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट हाई रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। जब प्रोड्यूसर को पता है उसके गुड की डिमांड क्या है, ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, सप्लाई भी क्या करेगा उस हिसाब से ज़्यादा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब सरकार के पास पैसा होगा, सरकार जितनी भी कमिटमेंट करी है, कि सरकार किस पे कमिटमेंट करती है, या तो डेवलपमेंट
डेवलपमेंट पे या वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो पूरे के पूरे कंप्लीट करेगी। मतलब सरकार जितनी भी कमिटमेंट करी है लोगों की भलाई के लिए और डेवलपमेंट के लिए, वो कंप्लीट करेगी ही करेगी। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स, सर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? बाहरले गुड क्या है? महंगे, और हमारे गुड क्या है? सस्ते। बाहरली कंट्रीज हमारे गुड से सामान को मंगवाएंगी। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द इम्पोर्ट्स, हम बाहर से गुड्स को कम मंगवाएंगे। क्यों कम मंगवाएंगे? क्योंकि बाहरले गुड्स के प्राइस क्या है? ज़्यादा, और हमारे गुड्स क्या है? हमारे गुड का प्राइस क्या है? कम। तो हम इम्पोर्ट्स क्या करेंगे? कम। इम्पोर्ट्स मतलब जब हम बाहर से सामान मंगवाते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, डिक्रीज इन द टैक्सेस, डिक्रीज इन द टैक्सेस। टैक्सेस क्या हो जाएंगे तुम्हारे? क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। टैक्सेस कम होने से क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी। ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होने से क्या होगा? तुम ज़्यादा डिमांड करोगे। डिक्रीज इन द टैक्सेस मीन्स सरकार टैक्सेस को क्या कर देगी? कम कर जाएगी, कम करेगी। कम करने से तुम्हारे पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी। ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होने से क्या होंगे? लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे। हमने ये कौन सा क्वेश्चन किया? कॉजेज ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड। कॉजेज का मतलब क्या कारण है एक्सेस ऑफ डिमांड के बढ़ने के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सिक्वेंसेज और इम्पैक्ट। कॉन्सिक्वेंसेज और इम्पैक्ट, इसमें क्या होता है? AD इज मोर देन AS। AD क्या है? ज़्यादा। AS से प्रोड्यूसर का सारा सामान क्या हो जाएगा? सोल्ड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर वो प्रोडक्शन को क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। देयर इज़ नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इकॉनमी में कोई भी नॉन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। और राइज इन द प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? उसमें फॉल किया था, इसमें क्या हो जाएगा? जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसमें जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो उतनी की उतनी ही रहेगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई उतनी की उतनी ही रहेगी, तो प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ाकर मार्केट में बेचेगा। These is consequence or impact. Students, we have done which question? That is excess of demand. In the excess of demand you have done the define causes and consequences or impact. This is all one question. The examiner can ask you any part from this question, so make it clear and pay attention regarding writing this question. If the question is asked what are the explain the causes of excess of demand, then you are going to write only the causes. If asked explain excess of demand, then you have to write the define and diagram both. Now next topic is last topic is inflationary gap. When there is excess of demand, इकोनॉमी में कौन सा गैप आता है? इन्फ्लेशनरी गैप। आपने डेफिशिएंट ऑफ डिमांड किया था, डेफिशिएंट ऑफ डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप आता है। एक्सेस ऑफ डिमांड में कौन सा गैप आता है? इन्फ्लेशनरी गैप। ये डिफाइन दोनों की एक्सेस एंड इन्फ्लेशनरी गैप की दोनों की क्या है? सेम। डिमांड क्या होती है? ज़्यादा। AS क्या होती है? कम। कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। जब एक्सेस ऑफ डिमांड इकॉनमी में होती है, प्रेशर ऑफ डिमांड किसके ऊपर आ जाता है? रिसोर्सेज के ऊपर आ जाता है। कि रिसोर्सेज मीन्स रॉ मटेरियल के ऊपर आ जाएगा। डिमांड ज़्यादा है तो प्रेशर किसका आएगा? डिमांड का। किसके ऊपर आएगा? रिसोर्सेज के ऊपर आएगा, जिस करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बनाने का खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब बनाने का खर्चा बढ़ेगा तो प्राइस भी तो बढ़ जाएंगे, जनरल प्राइस लेवल भी तो बढ़ जाएंगे, और जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आउटपुट लेवल रिमेन कांस्टेंट, जो आउटपुट है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम रिसोर्सेज हमने क्या किया है? AD इज इक्वल टू AS, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड है। इसका मतलब जब AD इज इक्वल टू AS है इकॉनमी में, जितने रिसोर्सेज हैं वो तो हमने पहले ही यूटिलाइज कर चुके हुए हैं, इसलिए आउटपुट तो क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी आर फुल एम्प्लॉयड। रिसोर्सेज क्या कर लिए हमने? फुली एम्प्लॉयड पहले ही कर लिए। इट मीन्स स्टूडेंट द प्रेशर ऑफ डिमांड किसके ऊपर पड़ेगा? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज है उसके ऊपर डिमांड पड़ेगा। जब डिमांड क्या है? ज़्यादा, रिसोर्सेज सप्लाई क्या है? कम, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा? जनरल प्राइस बढ़ जाएंगे। जनरल प्राइस बढ़ने से क्या होगा? आउटपुट तो वही का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इकॉनमी किसके ऊपर ऑपरेट कर रही है? फुल एम्प्लॉयमेंट। दैट इज AD इज इक्वल टू AS एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज आर फुल एम्प्लॉयड। Now with the help of the diagram we are going to do it. The diagram of excess and demand and inflationary gap is same.
The difference between E and F is your inflationary gap. ADF is a full employment, यहाँ पे full employment है, AD is equal to AS. और हम ऊपर चले गए, एक्चुअल हमारी ऊपर चली गई है, क्यों? डिमांड क्या है ज़्यादा, रिसोर्सेज क्या है कम. तो ये जो डिफरेंस है E और F, ये तुम्हारा क्या है? इन्फ्लेशनरी gap. When the question is inflationary gap, explain inflationary gap, you are going to write down the define and these concept and then diagram. In the end, students, we have done full employment equilibrium. You all of you know now, full employment equilibrium, that means AD is equal to AS. Under full employment equilibrium, आपने equilibrium point से नीचे आ जाना है. Over full employment equilibrium point से ऊपर चले जाना है, क्योंकि डिमांड AD क्या ज़्यादा AS है, इसमें AS क्या ज़्यादा AD से. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स उनको काम मिल रहा है पर आप वो काम नहीं करना चाहते, क्यों? एट द एग्जिस्ट, क्योंकि उनको वो वेज रेट पसंद नहीं है. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो बंदा काम करना चाहता है पर उनको काम नहीं मिलता. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जितने बंदे हैं उनको सबको काम मिल रहा है और जितनी भी वेज रेट है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो डायनेमिक में हम बार बार अपनी जॉब को चेंज करते हैं. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन द डिमांड, चेंज इन द टेक्नोलॉजी के करके आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. डेफिसिट ऑफ डिमांड, ये एक ही क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया. डेफिसिट डिमांड, कॉजेज और इम्पैक्ट, ये तीनों पार्ट एक ही पार्ट है. डेफिसिट डिमांड क्या होती है? जब सप्लाई AS क्या होती है ज़्यादा AD से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर आपने उसके कॉजेज करे, फिर उसके इम्पैक्ट. डेफिसिट डिमांड के करके हमेशा इकॉनमी में क्या आती है? डिफ्लेशनरी गैप. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डन एक्सेस ऑफ डिमांड. देन एक्सेस ऑफ डिमांड क्या आती है? जब AD ज़्यादा होती है AS से, फिर हमने उसके कॉजेज करे, फिर हमने उसके इम्पैक्ट करे. एक्सेस ऑफ डिमांड के करके क्या आती है इकॉनमी में? इन्फ्लेशनरी gap. So these topic we have covered in this video. The next part of this chapter we are going to cover in the next video. So please read this concept thoroughly and make your doubt clear.